Class Morning, sir. about that is a grief process. So I think you understood about the grief process. Now today we are starting the new topic, that is a stress adaptation model. So stress adaptation model, that is one of the adaptation model, can be adopted any circumstances or any particular problems when the person is facing in the in pandemic situation. The person is having the more stress. Nowadays the person is having the more stress about the corona and covid positive, so that the person should have the one of the adaptability. So we have to provide the mental positivity in the person, we have to give the psychological support, and we have to provide the diversional therapy so that person cannot move to the unwanted events or unwanted chance of the any emotional feelings, or the person should not have any stress, should not have any anxiety, should not have any depression, so that they should have the adaptability, they should have the coping pattern, and they have to use the defense mechanism, how to protect ourselves, how to maintain the homeostasis in the particular organism. That is known as stress adaptation model. So in the stress adaptation model, that is according to the Seeley in 1956, 1956 में सीले ने एक डेफिनेशन दी थी कि स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ द डिमांड मेड अपॉन इट. When the person is having any type of stress, so they are having the some of the non-specific response in the body. Why it may be like, because when the person is having any kind of demand in between the body and the mind, so that is the one of the condition in known as stress. Stress is the non-specific response, that is against of the any unfavorable environment, against of the any favorable or unfavorable environment, so the person should have the stress. So that is the one of the non-specific response from the body or any kind of the demands made upon it. According to the Safer in 2000, stress is the arousal of the mind and body in response to that made upon them. According to Safer ने क्या define किया था कि इस arousal of the mind and body, body and mind are both are separate entity, मतलब दोनों ही अलग अलग हैं. Without the body mind cannot be function and mind cannot be function without the body. So they are become an entity, or they are correlated with the each other. So that is the arousal of the mind and body in response to the demand made upon them. किस तरह की demand रहती है उनके ऊपर, the demands is depends on the stressors. So many stressors is surrounding us, so like internal stressors in the body and external stressors that is surrounding the environment or surrounding the society. So they are affecting the body and mind, so the person should have the more stress. According to the Fred Luthans in 1998, stress is an adequate response to an external situation that results in the physical, psychological, behavioral deviation for the organizational participants. तो stress क्या है? एक प्रकार से we have to apply the adaptive response to the external situation. So the person should have the particular physical and psychological and behavioral problems in the particular situation, that is a stress क्या होता है कि this type of adaptive response to the external situation where the person is having the particular features just like psychological and behavioral features, so they are having the difficulty to manage the situation in the particular organizational situation, so that person should not be participated in the organizational activity. So the person should have the physical, psychological, behavioral deviation. So that is the stress. Now stressor is any person or situation that produces the anxiety responses. Stressors क्या होते हैं? एक प्रकार से सिचुएशन पर्सन को सिचुएशन को चेंज करके पर्सन के अंदर एंजाइटी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं. So there are some of the stressors are like here: environmental stressors, physiological stressors, social stressors, and thoughts. So there are 4 types of these stressors we can say here in the particular this mental health nursing, mental health or psychiatry. So that there are 4, but in psychology there are 2 types of these stressors, like internal stressors or external stressors.
So in the psychiatric, that is environmental stressors are the noise, pollution, traffic, crowding and weather. So these are the environmental stressors. They are producing more anxiety, more stress in the person or in the particular organism of the individual. सो नॉइज की वजह से पर्सन परेशान होता है, उसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन आजकल देख सकते हो आपकी, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो रहा है, एंजाइटी डेवलप हो रही है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि ट्रैफिक की वजह से भी एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्राउडिंग इतनी बढ़ रही है, ठीक है, वेदर चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स के अंदर आते हैं जो हमारे पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को चेंज करते हैं। तो द पर्सन इज मूविंग इनटू द एंजाइटी रिस्पॉन्स। सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर आप देख सकते हो कि पर्सन फिजियोलॉजिकल में जैसे इलनेस होती है, इलनेस के अंदर आप ले सकते हो जैसे किसी को कैंसर हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है, या कोई पर्टिकुलर सीवियर इलनेस हो गई है, इंजुरीज़ हैं जैसे कि एक्सीडेंटल इंजुरीज़ है या अदर टाइप ऑफ इंजुरीज़ हैं, उनकी वजह से भी ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस अफेक्ट करते हैं। हार्मोनल फ्लैक्चुएशन, यदि हार्मोन्स में कोई भी फ्लैक्चुएशन होता है बॉडी के अंदर तो दे में आल्सो अफेक्ट द पर्सनस एंजाइटी। देन इनएडिक्वेट स्लीप, जो लोग स्लीप नहीं करते, प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप नहीं होता, प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं होता, दे आर हैविंग द पर्टिकुलर एंजाइटी रिस्पॉन्सेज। देन दोज हु आर नॉट टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते हैं, तो उनको भी दे आर गेटिंग द आल्सो एंजाइटी रिस्पॉन्सेज। देन सोशल स्ट्रेसेस के अंदर आप देख सकते हो कि सोशल स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, जैसे कि आजकल नाउअडेज वी कैन सी इन द पेंडेमिक एरिया, pandemic situation, just like financial problem is coming because now is a lockdown is going on, so the so many people are they're getting the particular financial problem. They are how to they some people they lose the job, also they lose the some of the like particular business, so that in that particular condition the person is having the more financial problem, so they may have this anxiety responses। वर्क डिमांड, जो वर्क की जो आउट इनपुट है वो इतनी बढ़ गई है कि नोबडी इज सेटिस्फेक्शन, बिकॉज प्राइवेट में आप देख लो चाहे गवर्नमेंट में देख लो, वर्क इनपुट जो है इतना बढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्क आउटपुट हमें देना पड़ता है। सोशल इवेंट के अंदर, सोशल इवेंट पे आप देख सकते हो सोसाइटी के अंदर जो सिचुएशन होती है, पहले क्या होता था कि जस्ट वी आर मिक्सिंग ऑल टुगेदर, बट नाउ इट इज द सोशल सिचुएशन इज सेइंग दैट द नोबडी इज इन्वॉल्विंग इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी, वी शुड डू ओनली इन द alone or in the independent situation। then losing a loved one, जैसे कि आपने ग्रीफ में मैंने बताया था कि ग्रीफ के अंदर losing a loved one, that is a grief is one of the conditions, so that they may have some of the anxiety responses। so etc, that is so many other condition can be when the person is social isolated, that is also one of the social stressors। थॉट्स के अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक, those who are talking about negatively in to the particular person, so that is a negative self talk, so that they may have this type of anxiety responses। catastrophizing, the person is talking relevant things to the particular person, so the catastrophizing condition may be developing। so catastrophizing, that is one of the irrelevant conditions, so that they may have moving to the particular bodily organism। perfectionism, those who are not become perfect in the particular situation, perfectionism is become impaired because of any personality or any other type of mental disorder, so the person is having the difficulty to maintain the perfectionism in the situation। those thoughts may also affect the anxiety responses। so these are the introduction about the this stress adaptation model। now we have to move on the models of the stress। so models of the stress के अंदर the model of stress assists the nurses to identify stressors in a particular situation and to predict individual responses, so that is known as stress। stress क्या होता है, model of stress क्या है, it is made up of particular categories that comes in the three categories, like three main categories comes, three main components comes in the model of the stress: stimulus based model, response based model and transaction based model। according to these models of the stress, the nurse is assisting to identify the stressors are affecting the particular person। किस टाइप के जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, शी शुड आइडेंटिफाई
then she should predict the individual responses against of the stressors. So nurses can use knowledge of these models to assist patient in the strengthening healthy coping responses and in adjusting unhealthy, unproductive responses. So nurses having the more knowledge how to tackle the situation, how to use the model to assist the patient in the to maintain the healthy coping responses, how to develop the healthy coping mechanism in the particular person, and how to adjust to the unhealthy situation, and how to get the responses in the unproductive situation. So that all nurses should have the knowledge about these models. उसको पता होना चाहिए मॉडल के अंदर क्या है, मेनली क्या होता है कि नर्स जो होती है सबसे पहले शी शुड आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर्स, जिस स्ट्रेसर से उस व्यक्ति को परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, शी शुड आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर स्ट्रेसर्स in the particular situation. So after that she should identify the responses, each and every individual responses when the person is facing the particular situation. So this is the मॉडल ऑफ स्ट्रेस. नर्सेस अपनी नॉलेज को यूज करती है इस मॉडल के अंदर जो पेशेंट की कोपिंग रिस्पॉन्सेज है को बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए उसमें असिस्ट करती है, और जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है उसको एडजस्ट करती है, और जो अनप्रोडक्टिव रिस्पॉन्स होते हैं उनको एडजस्ट करने में हेल्प करती है. सो देर आर 3 मॉडल्स हैं यहाँ पर स्ट्रेस के: स्टिमुलस बेस्ड मॉडल, रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल एंड ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल. Now we have to study about the one by one that model, stimulus based model, that is Holmes and Rasis model. In 1960 ये मॉडल दिया हुआ था हॉम्स ने एंड रासिस ने मॉडल, दैट इज इन 1960 के अंदर, दैट इज अ स्टिमुलस बेस्ड मॉडल. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से क्या है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज ए स्टिमुलस. स्ट्रेस एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से स्टिमुलस होता है, ठीक है, या स्टिमुलस के अलावा लाइफ इवेंट होता है, या एक प्रकार से एक सर्कमस्टेंसेस का एक प्रकार से सेट होता है जो व्यक्ति के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को डेवलप करता है, जिससे पर्सन के अंदर इलनेस के चांस ज़्यादा रहते हैं, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है. ठीक है, इस मॉडल के हिसाब से क्या है कि सबसे पहले हम 3 चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, जो हमारे इंडिविजुअल को या पर्सन को इलनेस की तरफ धकेलती है, ले जाती है. वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है, जैसे कि बाहरी स्टिमुलस हैं, आपके स्ट्रेसर्स हैं, या आपके लाइफ इवेंट्स हैं, या आपका जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उनके सेट्स होते हैं. स्टिमुलस की हम बात करें तो इंटरनल स्टिमुलस और एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होते हैं. एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो हैं वो आपको अफेक्ट करते हैं, व्यक्ति को अफेक्ट करते हैं. लाइफ इवेंट्स क्या है, जो लाइफ में डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हेन वी आर फेसिंग डे टू डे लाइफ, ठीक है, तो दैट आल्सो कम्स इन द लाइफ इवेंट. सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है व्हेन वी आर बिकम नॉर्मल, और अचानक हमें एक न्यूज़ मिलती है कि एक हमारा जानने वाला व्यक्ति कोविड की वजह से उसकी डेथ हो गई. तो जो सर्कमस्टेंसेस है वो हमारे हालात को बिल्कुल बदल देता है, हमारी इस सिचुएशन को एकदम चेंज कर देता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगती है. सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या होता है, जैसे कि लॉकडाउन हो गया, या इसके अलावा इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इसके अलावा हमारा एग्जाम्स के अंदर जो भी है हमारा क्वेश्चन छूट गया है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनकी वजह से पर्सन के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होता है. जैसे कि स्टिमुलस है, लाइफ इवेंट है, जिसमें हमें 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे एक व्यक्ति को हमेशा इलनेस की तरफ धकेलती है. हमारा यदि जो इम्यूनिटी है या हमारा सिस्टम वीक हो गया है, तो उस वीक की वजह से हम क्या हुए, वल्नरेबल हो रहे हैं इलनेस की तरफ. So that is according to this model. So Holmes and Rahe developed the social readjustment rating scale. अब होम्स और राहे ने एक प्रकार से सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल को डेवलप किया, जिसमें कि 43 लाइफ चेंजेस होते हैं और इवेंट होते हैं.
विच आर द बोथ द पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर and according to the stressful situation. So there are 43 life changes will be there in the SRRS rating scale, that is a social readjustment rating scale के अंदर 43 लाइफ चेंजेस होते हैं, इवेंट होते हैं, जो दो प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, जो बिकम स्ट्रेसफुल होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मोर स्ट्रेसर्स से पर्सन एक्सपीरियंसेस फिजिकल इलनेस, जिनको ज्यादा स्ट्रेसर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, मोर स्ट्रेसर्स, तो उसकी फिजिकल इलनेस को वो मूव करता है, मतलब फिजिकल इलनेस उसके अंदर डेवलप हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज डेवलप हो जाते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, फॉर 1 to 2 years, मतलब 1 से 2 साल के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस प्रकार के जो फीचर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। पर्सन इज मोर ससेप्टिबल टू गेट द फिजिकल इलनेस, मोर ससेप्टिबल टू गेट द मेंटल डिसऑर्डर, मोर ससेप्टिबल टू गेट द स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रेसर्स आर व्हेन द पर्सन इज एक्सपीरियंसेस। So mainly this theory explains that many people with a high score on the SRRS do not experience serious problem. जो लोग, ठीक है, जिनके अंदर SRRS का हाई स्कोर होता है, उनके अंदर सीरियस प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती, ठीक है। जहां पर लो स्कोर आ गया, इसका मतलब है कि अब उनकी लाइफ को हम किसी भी डेंजर सिचुएशन से हम उनको बचा नहीं सकते, और इसका मतलब है स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। स्कोर का मतलब हो गया जैसे कि आपके 43 स्कोर है, 43 लाइफ चेंजेस हैं, अब 43 लाइफ चेंजेस के अंदर जितना आपके कम होंगे उतना ही आपको ससेप्टिबल टू द मोर स्ट्रेस, और यू कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन टू बिकम डेंजर, ठीक है। सो दैट इज अ मोर। अब आप इसमें समझ गए होंगे दोनों, इसमें टोटल SRRS सिस्टम होता है जिसको कहते हैं सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल, जिसमें 43 लाइफ चेंजेस होते हैं, इवेंट होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे स्ट्रेसफुल को कंसीडर करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मेनली जो व्यक्ति इनके अंदर स्कोर ज़्यादा होता है, इन चीज़ों का स्कोर जब ज़्यादा होता है तो वो सीरियस प्रॉब्लम से अफेक्ट नहीं होते हैं। जिनके अंदर लो स्कोर होता है वो डू नॉट गारंटी लाइफ फ्री ऑफ डेंजर ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी लाइफ को एक डेंजर से बचा रहे हो, ठीक है। तो उस प्रकार ये दैट इज स्टिमुलस बेस्ड मॉडल विच इज गिवन बाय द होम्स एंड रासिस मॉडल इन 1960 के अंदर। नाउ रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल, अब सेकंड आता है आपका रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। ये CLA ने दिया है। रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल क्या दिया है? CLA ने स्ट्रेस रिस्पॉन्स which is characterized by the chain or pattern of physiological event that is called general adaptation syndrome. General adaptation syndrome, that is a gas, 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 ठीक है, which is characterized by a chain, एक प्रकार की चेन होती है, एक प्रकार का पैटर्न होता है जो फिजियोलॉजिकल इवेंट से बना होता है, जिसको हम कहते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको CLA ने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें आगे की तरफ हम जाएं, स्टिमुलस बेस्ड मॉडल किसने दिया है? होम्स एंड रासिस ने दिया है, और ये जो रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल जो दिया है वो सीले स्ट्रेस रिस्पॉन्स ने दिया है, स्ट्रेस सीले ने दिया है। सो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम दैट इज हेंस CLA 1945 के अंदर इस मॉडल को डेवलप किया था। तो दिस मॉडल इज एक्सप्लेन अबाउट द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, दैट इज हाइपोथैलेमिक pituitary adrenal axis system which prepare the body to cope with the stress and local adaptation syndrome। एक प्रकार ये मॉडल जो है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो मॉडल है, ये एक मॉडल उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, दैट इज HPA एक्सिस सिस्टम, जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि हमारे अंदर जो स्ट्रेस हो रहा है या हमारे अंदर कोई प्रकार से एंजाइटी हो रही है उसको कोप करे और लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम को डेवलप करे। तो कोप कैसे किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमेशा कोप करने में ये जो मॉडल है वो हेल्पफुल होता है। दिस मॉडल डेवलप होम्यो
स्टैटिक मैकेनिज्म विच मेंटेन एंड रेगुलेट एवरीडे स्ट्रेस ऑफ लिविंग, जो हमारे होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, जो हम डेली हम स्ट्रेस से गुजरते हैं। इन सक्सेसफुल कंडीशन के अंदर क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ टेम्परेचर, केमिस्ट्री एंड प्रेशर। सक्सेसफुल कंडीशन कब होती है कि सब सक्सेसफुल कोपिंग पैटर्न कब मेंटेन होता है कि जब इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट को मेंटेन करता है, प्रॉपर मेंटेन करता है। जैसे कि हमारे टेम्परेचर को प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है, हमारे केमिस्ट्री का मतलब होता है जो केमिकल बैलेंस को मेंटेन करके चल रहा है बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रेशर्स होते हैं उनको मेंटेन करके चल रहा है। तो ये जो है वो क्या है, आपके पर्टिकुलर सक्सेसफुल कंडीशंस के अंदर डेवलप होते हैं, जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके चलते हैं। हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आपको पता है कौन कौन सी कंडीशंस से डेवलप होती हैं। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे मेंटेन करता है हमारे फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ टेम्परेचर को, केमिस्ट्री को और प्रेशर को। इफ स्ट्रेस इज एक्सट्रीम, यदि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहती है हमारे अंदर, तो हमारा जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो सफिशिएंट नहीं होता। यदि स्ट्रेस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो लंबे समय से चली आ रही है, वो कंट्रोल में नहीं है, तो हमारा जो नॉर्मल मैकेनिज्म जो होता है हमारा बॉडी का, वो सफिशिएंट नहीं होता। इस केस में हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस ट्रिगर ए सेट ऑफ बॉडीली चेंजेस, हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस लाते हैं हम किसको क्या कहते हैं, उसको जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। गैस के द्वारा हम अपनी बॉडी के अंदर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, बॉडी के सिस्टम को, ठीक है, यदि नॉर्मल मैकेनिज्म सफिशिएंट नहीं होता है, जब हमारा स्ट्रेस ज़्यादा होता है और लंबे समय तक होता है। दिस मॉडल state that an event that threaten an organism's well-being, stressors leads to a 3-stage bodily response। जब कोई व्यक्ति हमारी बॉडीली मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनिज्म के वेलबींग को अफेक्ट करता है, जैसे कि भारी स्ट्रेसर्स होते हैं, उनसे हमारा बॉडी जो होती है वो थ्रेटन होती है, ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। तो उस कंडीशन के लिए हमारे इस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर 3 स्टेज होती है जो हमारे बॉडीली रिस्पॉन्स को परफेक्ट बनाती हैं और मेंटेन करती हैं। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर आप यहाँ देखोगे कि देयर इज अ गैस, ठीक है, गैस के अंदर यहाँ दिखाया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर इधर की तरफ देखोगे रेसिस्टेंट टू स्ट्रेस होता है, ठीक है, रेसिस्टेंट टू स्ट्रेस के अंदर आप देखोगे यहाँ पर इसके अंदर देयर आर 3 स्टेज हैं इसके अंदर, अलार्म स्टेज, रेसिस्टेंट स्टेज एंड एग्जॉस्शन स्टेज। 3 स्टेज है इसके अंदर। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर 3 स्टेज होती हैं, अलार्म स्टेज, रेसिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉस्शन स्टेज, ठीक है। अलार्म स्टेज के अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस स्टेज के अंदर बॉडी एडजस्ट टू द स्ट्रेसर्स, हमारी बॉडी एडजस्ट करती है स्ट्रेस के अगेंस्ट में। देन एग्जॉस्शन फेज के अंदर क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी भी स्ट्रेसर से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, तो हमारे अंदर बॉडी अपने आप ही एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म तैयार करती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जिसको कहते हैं होम्योस्टैटिक फिजियोलॉजिकल बैलेंस बन के रहता है। तो इसके अंदर टाइम दिया हुआ है, इस तरह का टाइम है, ये 3 दिखाए हुए हैं यहाँ पर। नाउ यू कैन सी हियर अलार्म, रेसिस्टेंस एंड एग्जॉशन। अलार्म के अंदर देखिए किस तरह का अलार्म, यदि कोई भी स्ट्रेसर्स जो होते हैं उसको अलार्म कर रहा है कि जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म आपके अंदर डेवलप जो हो रहा है वो उसको अलार्म करता है कि इससे और ज़्यादा आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो अलार्म कर रहा है इसको कि ज़्यादा हैवीली एक्सरसाइज ना करें, ठीक है। रेसिस्टेंस का मतलब है कि वो रेसिस्ट कर रहा है, जो रोक रहा है उस चीज़ को, ठीक है। एग्जॉशन के अंदर क्या होता है, जो हमें एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है। 3 स्टेज जो हैं वो हमारे अंदर डेवलप होती है। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर स्टेज यहाँ पे दिखाई है, अलार्म है, रेसिस्टेंस है, आपका एग्जॉस्शन है,
ठीक है। अब इसके अंदर 3 स्टेज हो गई आपकी। व्हेन स्ट्रेस एपियर, जब स्ट्रेस एपियर होता है, इट स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू इनिशिएट द गैस थ्रू द 2 पाथवे। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे हाइपोथैलेमस को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे हम क्या करते हैं कि 2 पाथवे हम यूज करते हैं गैस के अंदर। गैस के अंदर जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम के अंदर 2 पाथवे यूज करते हैं। तो फर्स्ट पाथवे रहता है, सेकंड पाथवे रहता है। फर्स्ट पाथवे के अंदर क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक डिवीजन का स्टिमुलेशन होता है, एड्रेनल मेडुला का स्टिमुलेशन होता है, तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार से इमीडिएट सेट ऑफ रिस्पॉन्स सडनली रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम कहते हैं का अलार्म रिएक्शन, अलार्म रिएक्शन। जैसे ये आपको मैं बताऊं आपको कि जब हमें हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है, ठीक है, ब्लैडर फुल हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस, तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर अलार्म स्टार्ट हो जाता है कि फुलनेस ऑफ द ब्लैडर। फिर हम क्या करते हैं, उस ब्लैडर को रिलीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पास करने जाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ दी एक अलार्म स्टेज हो गई, आपके अलार्म हो गए। जैसे आपने खाना खाया और खाना हैवी हो गया आपके, तो पेट के अंदर क्या होगा, आपका हैवीनेस आ गई, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो गई, गैस डेवलप हो गई। तो खाना खाने से इसका मतलब है कि बॉडी आपको अलार्म कर रही है कि आप बॉडी के अंदर उस सिचुएशन, उस पर्टिकुलर कैपेसिटी से ज़्यादा अधिक कैपेसिटी को आप फॉर्म कर रहे हो उसके अंदर। तो एक बॉडी अलार्म करती है कि आप ये ना करें। जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं, डकार लेते हैं, तो डकार लेने के बाद मतलब इसका मतलब है कि बॉडी अलार्म करती है कि ज़्यादा नहीं खाइएगी, क्योंकि डकार आ गई, इसका मतलब है कि खाना सफिशिएंट हो गया, बॉडी का एनफ हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा यदि खाएंगे तो उससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और एड्रेनल मेडुला है, वो क्या करता है, एक प्रकार से स्टिमुलेट होता है और हमारे अंदर एक इमीडिएट रिस्पॉन्स डेवलप करता है, जैसे कि उनको कहते हैं अलार्म रिएक्शन। सेकेंड पाथवे के अंदर क्या होता है कि रेसिस्टेंट रिएक्शंस जो होती है उसको सेकेंड पाथवे कहते हैं, जिसके अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है। रेसिस्टेंट रिएक्शन के अंदर 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल कॉर्टेक्स। सो द रेसिस्टेंट रिएक्शन इज स्लोअर टू स्टार्ट, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होती है, बट इसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टर होता है, लंबे समय तक होता है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन होता है, तो ये धीरे धीरे स्लो तो होता है, स्लो में स्टार्ट होता है, बट इसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसको कहते हैं रेसिस्टेंट रिएक्शन। दैट इज द सेकंड पाथवे। 2 पाथवे आपको समझ में आ गए होंगे कि दैट इज स्टेजेस ऑफ द जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम के अंदर होते हैं। नाउ हम बात करें 3 स्टेजेस मॉडल ऑफ द जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम के अंदर। हमारे स्ट्रेसर्स जो हैं वो हमारे स्टेज 1 अलार्म को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बॉडी प्रिपेयर फॉर एक्शन, इंक्रीज अराउजल। हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर तैयार होती है एक्शन करने के लिए। जब हमारी बॉडी एक्शन करने के लिए तैयार होती है तो हमें क्या होता है, हमारा अराउजल इंक्रीज होता है, दैट इज एन अलार्म, ठीक है। जब हमको पता है कि आज हमारा कल एग्जाम है तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं सिचुएशन के अंदर तैयार होने के लिए कि कल हमारा एग्जाम है और हमें एग्जाम को अच्छी तरह से करना है और उसके अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो दैट इज बॉडी प्रिपेयर, जो अपने आप ही एक्शन करती है और हमारे अराउजल को मेंटेन करती है। स्टेज ये है स्टेज 1 अलार्म के अंदर। स्टेज 1 के बाद अलार्म के अंदर क्या होता है कि जब अटेम्प्ट्स आर मेड टू कोप विद अ स्पेसिफिक सेकंड, स्टेज सेकंड के अंदर रेसिस्टेंस है आपका। रेसिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि अटेम्प्ट्स आर मेड टू कोप विद अ स्पेसिफिक स्ट्रेस। हमारी बॉडी क्या करती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रेसर से बचाने के लिए हमारे अंदर कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप होता है, जो हमारी बॉडी एक इम्यूनिटी डेवलप करती है और उस सिचुएशन को कोप करने में हेल्पफुल रहती है। ये रेसिस्टेंस के अंदर होता है जब हमारे अंदर स्ट्रेसर्स हमारे अंदर अटैक करते हैं। स्टेज 3 के अंदर एग्जॉशन होता है, जब बॉडी कैन नॉट नो लॉन्गर रेसिस्ट द स्ट्रेस, जब बॉडी हमारे अंदर उन स्ट्रेसर्स को नहीं रोक पाती है तो हमारे क्या होता है, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन बिगिंस हो जाता है। हमारे साइकोलॉजिकल छीड़, मतलब मानसिक क्षीणता डेवलप हो जाती है। मानसिक क्षीण हो गया तो उसका मतलब है जब मानसिक क्षीणता डेवलप होगी तो फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एग्जॉशन होता है हमारे जब हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर स्ट्रेसर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है,
तो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। नाउ स्टेज 1 के अंदर हम देखेंगे अलार्म रिएक्शन और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर। अपॉन एनकाउंटरिंग स्ट्रेसर, जब स्ट्रेसर हमारी बॉडी को अटैक करते हैं, हमारी बॉडी को रिएक्ट करते हैं, तो इसके अंदर हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करती है। फाइट का मतलब होता है जो हमारे बाहरी जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनसे फाइट करती है, और यदि फाइट नहीं कर पाती है तो फिर उनसे दूर हट जाती है, फ्लाइट कर जाती है। जब फ्लाइट कर गई तो क्या होगा, कोई नॉर्मल मैकेनिज्म उसके अंदर, बॉडी के अंदर नॉर्मल मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस कंडीशन में एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या होगा कि जो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो हार्मोन्स जो हैं वो भी एक्टिवेट होंगे, जैसे कि कॉर्टिसोल है, आपका एड्रेनल है, वो रिलीज हो जाएंगे ब्लड के अंदर। जब रिलीज होंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर जब रिलीज होंगे तो हमें, हमारी बॉडी को थ्रीटन होगा, डेंजर होगा, हमारे लिए डेंजर होगा, सिचुएशन बन जाएगी और थ्रीटन डेवलप हो जाएगा। जब उसके अंदर जब ये होगा तो बॉडी रिसोर्सेज ना मोबिलाइज, जो बॉडी रिसोर्सेज होते हैं वो मोबिलाइज करने लगते हैं इधर उधर, ठीक है। तो हमारी बॉडी एक खतरे में हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर अलार्म रिएक्शन डेवलप होती है। मतलब उसका मतलब है कि जब कोई भी स्ट्रेसर हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स रिड्यूस करती है। तो क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस कंडीशन में एक्टिवेट हो जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारे जो हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल है, एड्रेनल है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज हो जाएंगे। जो वो क्या करते हैं कि जब एक बार रिलीज हो गए हाइपर में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी को थ्रीटन होगा और डेंजर, हमारी बॉडी बिकम डेंजर सिचुएशन में आ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी अलार्म करेगी कि बचाओ मुझे, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्टिंग कराएंगे, या उसके अलावा मेडिकेशंस लेंगे, तो उससे हम अपनी बॉडी को, तो एक अलार्म स्टेज डेवलप हो जाती है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के कारण। अलार्म रिएक्शन की हम बात करें यहाँ पे, स्ट्रेसर्स आए, स्ट्रेसर्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा ये कुछ चीज़ें, क्योंकि ये बहुत अभी लंबा पार्ट है ये। और आपकी जो अलार्म रिएक्शन है, अलार्म रिएक्शन का मैं आपको so if you are getting any problem just you can ask in the next class.